नमस्कार। डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से MSc फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर नंबर 504 ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की यूनिट 4 रीअरेंजमेंट एंड रिएक्शन के अंतर्गत ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट के ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द हॉफमैन रीअरेंजमेंट और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन. It is also called Hofmann bromamide reaction. So Hofmann rearrangement is the conversion of an amide into primary amine with concentrated amine with one carbon less by the action of alkaline hypohalite. Alkaline hypohalite is the mixture of sodium hydroxide with bromine or chlorine. This is called Hofmann rearrangement. Means the conversion of amide into primary amine with one carbon less than the amide by the action of the alkaline hypohalite is called Hofmann rearrangement. So this is the reaction. This is an amide RCONH2 when it is treated with bromine and sodium hydroxide, it gives RNH2 because CO this is removed from this amide, so one carbon amine with one carbon less is obtained in this reaction. We obtain NaBr and Na2CO3 plus 2H2O, where now this R may be aliphatic, aromatic or heterocyclic, whatever may either it may be alkyl or it may be aryl or it may be a heterocyclic one. So this reaction is also called Hofmann bromamide. We have written this Hofmann rearrangement or Hofmann bromamide. So why this is called Hofmann bromamide reaction? So this reaction is also called because since bromine is mostly used in it and the intermediate is N-bromamide, because an intermediate N-bromamide is obtained in this reaction, and usually we use bromine and sodium hydroxide. That's why it is called Hofmann bromamide reaction. This is also called Hofmann bromamide reaction. So either we can call it Hofmann rearrangement or Hofmann bromamide reaction. The mechanism of this reaction is the following mechanism has been suggested. This amide, when treated with NaOBr, hypobromide, means by the mixture of sodium hydroxide and bromine, we obtain N-bromamide. N-bromamide, here we obtain N-bromamide, 1H, this is removed with bromine. So N-bromamide, we obtain N-bromamide. When treated with this hydroxide ion, one water molecule is removed from this H1. This H is removed as in the form of water, and we obtain this N-bromamide anion. Anion is obtained from this. And to reduce this negative charge from nitrogen, because bromine is more electronegative than nitrogen, so it takes the negative charge of this nitrogen and get out from this molecule and eliminated from this molecule, and we obtain this acyl nitrene. We obtain nitrene from this. As bromine will remove from this, we obtain acyl nitrene. Now in this acyl nitrene, this R group migrates from carbon to nitrogen, and we obtain this RNCO, or RNCO means isocyanate. We obtained isocyanate, and this again treated with water to give this. Water is added from one H is here, added here, and OH is here, and so by the rearrangement of this we obtain amine and carbon dioxide. Carbon dioxide so produced here is react with sodium hydroxide to give sodium carbonate and water. So this is the
मैकेनिज्म। पहले सोडियम हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ ब्रोमीन से एन ब्रोमीमाइड देता है। एन ब्रोमीमाइड में से एक वाटर ये H+ निकल जाता है नाइट्रोजन के ऊपर से, और वो हमें एन ब्रोमीमाइड एनाइन मिलता है। इस एनाइन में से ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाता है ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में, और नाइट्रीन मिलता है। दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट जो नाइट्रीन मिलता है, इसमें एल्काइल ग्रुप का आर ग्रुप का माइग्रेशन होता है। आर में भी एल्काइल, एराइल और हेट्रोसाइक्लेट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये आर इस कार्बन से नाइट्रोजन पे माइग्रेट करके हमें आइसोसाइनेट देता है। आइसोसाइनेट रिएक्टिव होते हैं, तो ये वाटर से रिएक्शन करके और इस तरीके से फिर या अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यही मैकेनिज्म जो ऊपर हमने डिस्कस करी वो यहाँ लिखी हुई है। इन द फर्स्ट स्टेप प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद हाइपोब्रोमाइड टू फॉर्म एन ब्रोमीमाइड। पहले स्टेप में एन ब्रोमाइड बनता है। इन सेकेंड स्टेप रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन टेक्स प्लेस टू फॉर्म एन फ्रॉम एन एटम बाय बेस टू फॉर्म एन ब्रोमीमाइड एनाइन। दूसरे स्टेप में नाइट्रोजन एटम से एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है बेस से, और एन ब्रोमीमाइड एनाइन हमें मिलता है। इन द थर्ड स्टेप लॉस ऑफ ब्रोमीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाईली रिएक्टिव एसाइल नाइट्रीन। तो इसमें एक इंटरमीडिएट थर्ड स्टेप में ब्रोमाइड आयन के लॉस से नाइट्रीन मिल जाता है इंटरमीडिएट, जो हाईली रिएक्टिव होता है। एंड इन द फोर्थ स्टेप माइग्रेशन ऑफ आर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन गिव्स आइसोसाइनेट। चौथे स्टेप में जो है वो आर माइग्रेट करके नाइट्रोजन के ऊपर चला जाता है, और आइसोसाइनेट हमें यहाँ पे मिलता है। आइसोसाइनेट रिएक्ट विद वाटर। आइसोसाइनेट वाटर से रिएक्शन करता है टू गिव कार्बेमिक एसिड। कार्बेमिक एसिड मिल जाता है हमें, विच स्पॉन्टेनियसली एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड टू यील्ड अमीन। So this is carbamic acid. We obtained carbamic acid here, और ये कार्बेमिक एसिड टूट के जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमीन देते हैं। नाउ दिस मैकेनिज्म इज कन्फर्म्ड बाय द आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स। इस ये मैकेनिज्म जो प्रपोज की गई ये कन्फर्म की हुई बाय द इंटरमीडिएट के आइसोलेशन से। इंटरमीडिएट जो है वो आइसोलेट हो गए, जिससे ये पता लगा कि ये जो प्रपोज मैकेनिज्म है ये ठीक है। सो दिस मैकेनिज्म कन्फर्म्ड बाय द आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट एन ब्रोमीमाइड, इट्स एनाइन एंड आइसोसाइनेट अंडर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो ये एन ब्रोमीमाइड और एनाइन, इसका एनाइन और आइसोसाइनेट इसमें आइसोलेट कर लिए गए हैं, जिससे ये मैकेनिज्म जो है वो कन्फर्म होती है। The possibility of formation of acyl nitrene, however, has been rejected. अब इसके बीच में जो नाइट्रीन बनती है वो उसके ये जो नाइट्रीन बन रही है ये कई जगह ये एसाइल नाइट्रीन जो यहाँ बन रही है ये डाउटफुल है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसाइल नाइट्रीन however has been rejected. ये डाउटफुल है, ये रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? कि ये नहीं बनती है, ये कहा गया। फॉर इफ इट इज फॉर्म it would have react with the water to give hydroxamic acid। कि अगर ये नाइट्रीन यहाँ बन रही होती तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें आर ग्रुप का माइग्रेशन से पहले ये वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिमिक एसिड बना देना चाहिए था इसको, है ना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये इसमें रीअरेंजमेंट तो सेकेंडरी बात है कि थोड़ी देर ये स्टेबल हो तभी इसमें रीअरेंजमेंट होगा, एंड दिस आर ग्रुप विल माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। बट बिकॉज ये माइग्रेशन तो में टाइम लगता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाटर से रिएक्ट करके इसको हाइड्रोक्सिमिक एसिड दे देना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोक्सिमिक एसिड नहीं देती है ना। इट हैज़ नॉट बीन डिटेक्टेड, ये देखा नहीं गया, इस वजह से ये कहा गया कि इसमें ये एसाइल नाइट्रीन नहीं बनता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एसाइल नाइट्रीन वाज रिजेक्टेड इन दिस रिएक्शन। तो अब जब ये नाइट्रीन नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है? ये नाइट्रीन नहीं बनना, इसका मतलब ये दोनों स्टेप जो है वो कंसर्टेड स्टेप्स है। मींस एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन एंड माइग्रेशन ऑफ आयन ग्रुप आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये लिखा है यहाँ। हैंस द लॉस ऑफ Br and a migration of R in N bromamide anion is suggested to be
कंसंट्रेट। तो ये कहा गया है कि भाई नाइट्रीन तो इसमें नहीं बनती है, क्योंकि नाइट्रीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिमिक एसिड दे देता। हाइड्रोक्सिमिक एसिड इसमें नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये रिमूवल ऑफ ब्रोमाइड आयन एंड माइग्रेशन ऑफ आयर ग्रुप, दिस बोथ स्टेप्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और दिस इज कंसंट्रेटेड। ये देखा कि ब्रोमाइड आयन इधर से मूव करता है, इधर से आर ग्रुप यहाँ माइग्रेट करके ये आइसोसाइनाइड यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो नाइट्रीन की पॉसिबिलिटी इसमें कम है, या नाइट्रीन इसके बीच में नहीं बनता है। द रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर। अब दूसरी बात जो है कि ये जो रीअरेंजमेंट है, ये आर ग्रुप जो माइग्रेट हो रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। दिस रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर एंड द माइग्रेटिंग ग्रुप never completely separating during the migration, since no crossover products are obtained when two different amides are rearranged. तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। ये इंट्रामोलिकुलर इसका होने का कारण ये है, इंट्रामोलिकुलर इसके बारे में, क्योंकि अलग अलग दो एमाइड के मिक्सचर में ये रिएक्शन कराने पर कोई क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं मिलता। कोई क्रॉसओवर प्रोडक्ट तभी नहीं मिलेगा जब ये आर इसमें से टोटली डिटैच नहीं होगा। तो क्योंकि क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो ये सजेस्ट किया गया कि दिस रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर वन। इंट्रामोलिकुलर है, एक ही अंतः अणुक है ना, दो अलग अलग अणुओं के बीच में नहीं होता, एक ही अणु के अंदर ये माइग्रेशन होता है। क्योंकि दो अलग अलग अणुओं के बीच में अगर होता तो हमें क्रॉस ओवर प्रोडक्ट मिलता है ना। सो द rearrangement is intramolecular and the migrating group never completely separate during the migration, since no crossover product are obtained when two different amide are rearranged. तो एक तो इसमें नाइट्रीन नहीं बनता है, और ये दूसरे आइसोसाइनेट और ये एन ब्रोमेमाइड वगैरह ये आइसोलेट कर लिए गए हैं, तो ये कंसंट्रेटेड स्टेप है। और दूसरा क्रॉसओवर प्रोडक्ट इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन ये जो है कंसंट्रेट स्टेप्स में होता है। अदरवाइज हमें डिफरेंट जो है एमाइड लेके अगर हम रिएक्शन कराते तो हमें क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स मिलते इसमें। दिस इज फर्दर कंफर्म्ड बाय द फैक्ट दैट इफ आर इज कायरल एसिमेट्रिक, इट माइग्रेट्स विद अनचेंज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसका फर्दर कंफर्मेशन इस बात से भी हुआ कि इसमें ये आर ग्रुप जो है वो कायरल ले लिया हमने, एसिमेट्रिक ले लिया, और इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर ये सेपरेट होता, इस मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाता, फिर बाद में इसके साथ जुड़ता, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो सकता था। बिकॉज इट नेवर सेपरेट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, सो देयर इज नो टाइम फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस आर ग्रुप, दैट्स व्हाई इट्स कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड. So as in those example in which this R is chiral one, there is no change in its configuration. It suggests that R group never separates from this molecule. So this has been written here. ये यहाँ लिखा हुआ है. This is further confirmed by the fact that if R is chiral, it migrates with unchanged configuration. Thus कैम्फोरेमिक, इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया। दस कैम्फोरेमिडिक एसिड, कैम्फोरेमिडिक एसिड, ये नीचे कैम्फोरेमिडिक एसिड है ये। दस कैम्फोरेमिडिक एसिड हैविंग द COOH and CONH group in cis position undergoes Hofmann rearrangement to give amino acid second, in which the CO and NH2 groups are also in cis position, since it's readily फॉर्म लैक्टम। तो लैक्टम ये जो है वो कैम्फोरेमिडिक एसिड है ये। इसमें ये CONH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों सिस पोजीशन में है। इसका हॉफमैन रीअरेंजमेंट कराने पे ये हमें यहाँ पे अमीन दे देता है। ये एमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया अमीन में हॉफमैन रीअरेंजमेंट से। तो इसमें भी ये दोनों ग्रुप सिस पोजीशन पे ही है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो माइग्रेशन हुआ आर ग्रुप का, मतलब इस रिंग का, ये भी माइग्रेशन, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन है। सो दिस शोज कि ये जो है इंट्रामोलिकुलर वन है। सिमिलरली और एग्जांपल देखें, D अल्फा फिनाइल
propionamide gives d-alpha phenyl ethylamine on subjecting to Hoffman rearrangement. ये है d-alpha phenyl propionamide, ये प्रोपेनोमाइड है, इसका हॉफमैन रीअरेंजमेंट कराने पे ये हमें अमीन d-alpha phenyl ethylamine मिला है ना। तो इसमें हॉफमैन रीअरेंजमेंट से इसके भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये d-alpha का ये d-alpha ही रहा। ठीक है, तो ये बात ये शो करती है कि ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है और क्रॉसओवर प्रोडक्ट अगर अलग अलग एमाइड के साथ कराएंगे तो नहीं मिलते हैं। Now, the rate of this reaction increases when migrating group is more electron donating and decreases when electron withdrawing. अभी इसका जो रिएक्शन की रेट है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि माइग्रेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा हो। आर ग्रुप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा ये रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा होगी। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस व्हेन दिस आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। व्हेन आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इसकी रेट कम हो जाती है। इफ आर इन एल्काइल ग्रुप इज मोर देन 8 कार्बन लॉन्ग लो यील्ड आर ऑब्टेन्ड। और ये भी देखा गया है कि जिन एग्जाम्पल्स में, जिन केसेस में एल्काइल ग्रुप आर में कार्बन की संख्या 8 से ज़्यादा है, लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप या कुछ है, तो उसमें ये यील्ड जो है वो बहुत कम आती है। सम साइड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एज एडिशन टू द CONH2 एंड RnCO। अब इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट मिल जाते हैं क्योंकि एमाइड उसमें है और आइसोसाइनाइड बनता है जो, तो आइसोसाइनाइड और ये दोनों रिएक्शन करके इस तरीके के एडिशन प्रोडक्ट हमें दे देते हैं। तो कभी इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट भी हमें मिल जाते हैं। सम साइड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज एडिशन ऑफ CONH2 to RnCO gives RCONH and when R is primary group nitriles are obtained। और अगर R जो है वो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है तो हमें यहाँ पे नाइट्राइल साइनाइड जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट हॉफमैन रीअरेंजमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म। पहले तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट ये रिएक्शन बताया, फिर इसकी मैकेनिज्म बताई, फिर मैकेनिज्म के सपोर्ट में ये जो मैकेनिज्म प्रपोज करी गई उसके सपोर्ट में हमें बात बतानी है कि ये इसमें ये जो इंटरमीडिएट है वो ट्रैप कर लिए गए हैं। उससे पता लग रहा है कि ये जो है मैकेनिज्म ठीक है। फिर इसमें नाइट्रीन जो है वो आइसोलेट नहीं हुई क्योंकि नाइट्रीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें रीअरेंजमेंट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये वाटर से रिएक्शन करके हमें जो प्रोडक्ट बनानी चाहिए वो नहीं देती। इस वजह से हाइड्रोक्सिमिक एसिड मिलना चाहिए था, इसमें वो नहीं मिलता। इसका मतलब ये नाइट्रीन इसमें नहीं बनती है। तो इस स्टेप को, ये जो स्टेप है ना फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, इसको रिमूव कर दिया गया। तो ये माइग्रेशन ऑफ आर एंड एलिमिनेशन ऑफ Br ये दोनों एक साथ इसमें होते हैं, ये बता दिया गया। इसके बाद इसके मैकेनिज्म जो है वो ये जो इंट्रामोलिकुलर है इसके सपोर्ट में बात बताया कि अलग अलग एमाइड से रिएक्शन कराने पर इसमें क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। दैट्स वाई इट शोज कि ये जो है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। इसके सपोर्ट में ये कहा कि अगर आर ग्रुप कायरल या सिमेट्रिक होता है तो उसके कन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। उसको एक एग्जाम्पल से समझाया कि कैम्पोनेमेटिक एसिड जो है वो सिस प्रोडक्ट ही देता है। ठीक है, ऐसे ही D-alpha फिनाइल प्रोपियोनामाइड भी D-alpha फिनाइल इथाइलमीन देता है ना, उसमें भी डी कॉन्फ़िगरेशन में इसके में कोई चेंज नहीं होता है। फिर इसके आर ग्रुप के बारे में बताया कि आर ग्रुप जो है अगर इलेक्ट्रॉन, ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ना आर, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जितना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा ये रिएक्शन फास्ट होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो इसकी रिएक्शन जो है उतना स्लो होगा, है ना। और आर अगर ग्रुप आर ग्रुप अगर बल्कि है, मोर देन 8 कार्बन एटम का है, तो इसमें यील्ड जो है वो कम आती है। कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ये बात भी यहाँ बतानी है। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ दिस
हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं और वाइडली यूज है इंडस्ट्री में। ये बहुत ज़्यादा इसको यूज होता है परफ्यूमरी में, बहुत सारे प्रोडक्ट, और इससे जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने शुरुआत में जैसे कहा कि ये रिएक्शन जो है वो ये कन्वर्जन ऑफ एमाइड है, कन्वर्जन ऑफ एमाइड टू एमीन, कन्वर्जन ऑफ एन एमाइड टू प्राइमरी अमीन। अब एमाइड का कन्वर्जन है तो एमाइड मोस्टली एसिड से मिलते हैं हमें, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड हमें मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं, जो यूजेस हैं, उनमें एसिड से वो कन्वर्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड से अमीन कन्वर्ट करने का ये एक तरीका है कि एसिड को पहले एमाइड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट से अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन हमें मिल जाएगा। सो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन की ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स, अमीन्स की फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स बनाने के लिए बहुत यूजफुल मेथड है ना। एसिड्स एंड एमाइड टू अमीन, एसिड या एमाइड, एमाइड जैसे अभी बताया कि एमाइड तो एसिड से ही मिलता है, तो एसिड्स को अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या RCOOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट कर देंगे तो एमाइड मिल गया, और इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट करने से अमीन हमें मिल जाता है। इसी तरीके से बीटा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटेरेमाइड, ये ब्यूटेरेमाइड है ना, और बीटा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटेरेमाइड है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट, तो इससे Me3CCH2NH2 न्यूपेंटाइल अमीन हमें मिल गई। तो ये जो ये है, ये नॉर्मल बनाने के लिए, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एमाइड मीन्स मोर देन 8 कार्बन्स के गिव्स नाइट्राइल्स विच कैन बी रिड्यूस टू अमीन। अगर R ग्रुप बड़ा होता है तो ये एमाइड जो है वो ये नाइट्राइल या साइनाइड बना देते हैं, और इसके रिडक्शन से अमीन हमें मिल जाता है CH2NH2। यहाँ तो अमीन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो अगर बल्कि R ग्रुप है तो उसको नाइट्राइल देता है वो, और नाइट्राइल से फिर बाद में रिडक्शन से हम अमीन ले सकते हैं। यूरिया गिव्स हाइड्रोजन, यूरिया में एमाइडिक ग्रुप है NH2CONH2, so when it go through this हॉफमैन रीअरेंजमेंट इस पे कराया जाता है, तो यहाँ पे ये NH2NH2 मिलता है, हाइड्रोजन आप जानते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल जो है वो रिएजेंट है। सो यूरिया गिव्स हाइड्रोजन। द यील्ड ऑफ अमीन इज पुअर व्हेन बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर अपन बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड अगर इसकी जगह लेते हैं तो ये जो है वो तो इसमें यील्ड जो है वो पुअर आती है। तो एक तो हाइड्रोजन बनाने के लिए इसके बहुत यूज होता है। तो ये तो प्राइमरी अमीन बनाने के तरीके हो गए। प्राइमरी अमीन बनाने में एक तो इसका यूज है। द सेकंड एप्लीकेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस इज प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमीनो pyridine फ्रॉम निकोटिनेमाइड, है ना, टू फॉर्म फ्रॉम निकोटिनेमाइड। ये निकोटिनेमाइड है ना। इसका रिएक्शन कराने पर बीटा अमीनो pyridine हमें मिलता है। ये बीटा अमीनो pyridine जो है ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है इंडस्ट्री में, है ना, परफ्यूमरी में और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में, और ये बहुत सारे का ये जो रॉ मटेरियल की तरह इनिशियल रिएक्टेंट की तरह ये काम में लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमीनो pyridine, दिस बीटा अमीनो pyridine फ्रॉम निकोटिनेमाइड। सो ये सेकंड एप्लीकेशन है। द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस। ये सक्सिनेमाइड है। इस सक्सिनेमाइड का ये सक्सिनेमाइड, इसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो ये हमें एमाइड मिल गया CH2CONH2 और CH2COOH, रिंग टूट के ये हमें मिल गया। इसका हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट करा तो यहाँ पे ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अमीन में CH2NH2 CH2COOH एलेनिन, है ना। तो जो अमीनो एसिड है एलेनिन, बीटा एलेनिन यहाँ पे
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अमीनो एसिड्स बनाने के लिए। जैसे सक्सिनेमाइड से बीटा एलेनिन मिल गई। इसी तरीके से अगर थैलेमाइड, ये थैलेमाइड लेंगे हम, थैलेमाइड से ये रिएक्शन कराएंगे तो ये थैलेमाइड लिया, एनिवर्स से इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई और यहाँ पे हमें ये एमाइड मिल गया और इसका हमने हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन कराया या हॉफमैन रीअरेंजमेंट कराया और उसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई। ठीक है, तो ये अमीन में एंथ्रेनिलिक एसिड यहाँ पे ये हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेनिलिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, एजोडाई एंड सैकरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकरीन है ना, सैकरीन बना, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है सैकरीन, उसको बनाने में एंथ्रेनिलिक एसिड का बहुत ज़्यादा, तो इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा एंथ्रेनिलिक एसिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये जो रिएरेंजमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिहाज से। सो दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस Hofmann rearrangement, synthesis of amino acids. Now the fourth one is preparation of aldehyde from hydroxy acid amides. Hydroxy acid amide से aldehyde बनाने में Mandelic acid amide है ये C6H5CHOH CONH2। इसके रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से हॉफमैन रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये ये C6H5CHOH, ये OH तो इसके पास है, ये CONH2 की जगह कन्वर्ट हो जाएगा हॉफमैन से NH2, ये CONH2 की जगह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। और अगले स्टेप में ये स्टेबल नहीं होता, ये यहाँ H यहाँ आता है, NH2 NH3 के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और ये H इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड एमाइड, ये हाइड्रोक्सी एसिड एमाइड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अल्फा पोजीशन पे, तो ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से ये हमें एल्डिहाइड बनाने में इनको इस रिएक्शन को यूज करते हैं। द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस इज मेथेनोलिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद NaOCl gives urethane which on hydrolysis with HCl gives aldehyde in good yield। तो मेथेनोलिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, इसे इसके मेथेनॉल में इसका सोल्यूशन लेंगे तो इसकी फिर हॉफमैन रीअरेंजमेंट इस पे कराएंगे। तो ये हमें पहले तो यहाँ पे ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अमीन इससे रिएक्शन करके और ये यूरिथेन बना देगा, ये यूरिथेन बन गया और फिर ये यूरिथेन के हाइड्रोलिसिस करेंगे HCl से, तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिल जाता है और एल्डिहाइड गुड अच्छी यील्ड में मिलता है ना। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एमाइड है, इसका मेथनोलिक सोल्यूशन लिया, हॉफमैन रीअरेंजमेंट कराने पे ये यूरिथेन बनाया, यूरिथेन हाइड्रोलिसिस करके एसिड हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड जो है वो देता है यहाँ पे। द फिफ्थ एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ फेंटरमाइन, है ना। फेंटरमाइन जो है वो एक फेंटरमाइन जो है एक केमिकल, ये फेंटरमाइन है। ये फेंटरमाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी important component of our drugs which is used in the treatment of the obesity। obesity के treatment में ये यूज होता है। ये बनाते कैसे हैं, ये देखिए, ये बेंजीन Cl, ये एसिड क्लोराइड, इससे रिएक्शन करा के फ्रिडेनक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन कराने से ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे जुड़ गया, फिर इसका एमाइड बना दिया, NaNH2 सोडामाइड से रिएक्शन करा के ये एमाइड बन जाएगा। अब ये जो एमाइड बन गया, अब इस पे हॉफमैन रीअरेंजमेंट हमने कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें फेंटरमाइन में। सो दिस फेंटरमाइन is used in the preparation of the drugs which are used in the treatment of obesity। so इस रिएक्शन की बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसा आपने देखा 5 एप्लीकेशन। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स का बनाना, नंबर 2 इसमें 2-3 एग्जाम्पल देंगे, नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ
निकोटिनेमाइड, है ना, प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमीनोप्रिडिन, प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमीनोप्रिडिन फ्रॉम निकोटिनेमाइड, और तीसरा है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड में सबसे ज़्यादा ये वाला एग्जांपल आपको जरूर लिखना है, थैलेमाइड वाला, है ना, थैलेमाइड से एंथ्रानिलिक एसिड बनता है। दिस एंथ्रानिलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द परफ्यूमरी एंड प्रिपरेशन ऑफ द सैकेराइड्स, द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाने में, सैकरीन बनाने में ये बहुत इस्तेमाल होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड एमाइड्स, हाइड्रोक्सी एसिड एमाइड से साइनाइड बनते हैं, सॉरी एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है। और यूरिथेन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड से यूरिथेन्स बनते हैं और उससे भी एल्डिहाइड हमें, तो एल्डिहाइड बनाने के दो मेथड हैं, हाइड्रोक्सी एसिड से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड से। इन दो से हम ये जो है एल्डिहाइड बनाते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी वो इसमें ये जो फेंटरमीन बनाने में, फेंटरमीन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है विच इज़ यूज फॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। सो दिस वाज हॉफमैन रीअरेंजमेंट और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है, द conversion of amide into amines with one carbon less by the treatment of hypohalite. Hypohalite is the solution of NaOH or and halogen, and because most of the times bromine is used with NaOH, that's why this reaction is also called Hofmann bromamide reaction. So either it is Hofmann rearrangement पूछे या Hofmann bromamide reaction, आपको ये इसमें लिखना है। थैंक यू।